59th question is, the standard heat of formation of sodium ions in aqueous solution from the following data will be, और data given है कि heat of solution of NaOH aqueous from NaOH solid at 25 degrees Celsius is equal to minus 470.7 kilojoules. Heat of formation of OH negative aqueous from OH negative solid at 25 degrees Celsius is also given, that is equal to minus 228.8 kilojoules. तो देखिए पूछा क्या है इसने, उसके लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखे हैं सबसे पहले तो, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज Na positive solid plus aqueous giving you Na positive aqueous. He is asking for the standard heat of formation of sodium ions in the aqueous solution. और कैसे बनेगा Na positive aqueous? ऐसे बनेगा Na positive solid plus aqueous will give you Na positive aqueous. और इसके लिए इसने डेल्टा H की वैल्यू पूछी है. This we have to calculate. This is the required equation. और जो डेटा गिवन है, फर्स्ट देखिए क्या गिवन है, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH aqueous फ्रॉम NaOH solid at 25 डिग्री सेल्सियस वो गिवन है, और हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH solid Na positive solid plus OH negative solid plus aqueous giving you Na positive aqueous plus OH negative aqueous. ये इक्वेशन है फॉर द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH सॉलिड. दैट मींस Na पॉजिटिव सॉलिड प्लस OH नेगेटिव सॉलिड प्लस पानी डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन है, विल गिव यू Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस. एंड फॉर दिस इक्वेशन डेल्टा H इज गिवन, एंड फॉर दिस इक्वेशन डेल्टा H इज इक्वल टू minus 470.7 kilojoules. And another data that is given, another equation which is given is heat of formation of OH negative aqueous from OH negative solid. This is also given, इसके लिए delta H जो given है that is equal to minus 228.8 kilojoules. So now these are the two equations जिनको आपने यूज करना है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, और इन दोनों को यूज करते हुए you have to reach up to this answer, you have to reach up to this equation. तो कैसे आप पहुंच सकते हैं, देखिए फर्स्ट और सेकंड को क्या करें कि ये वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाए. तो ऑपरेशन हैज टू बी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड. आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए आंसर ये वाला ऑब्टेन हो जाएगा, this minus this. So OH negative solid will cancel out, OH negative aqueous will cancel out. We will be left only with Na positive solid plus aqueous giving you Na positive aqueous. That will be operation has to be, that means equation 1 minus equation 2, that will give you the required equation. और Hess's law of constant heat summation जब आपने किया था तो मैंने उसमें बताया था कि जैसे आप थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो उसी तरह से आपने डेल्टा H वैल्यूज को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. तो दैट मीन्स आंसर विल बी minus 470.7 माइनस ऑफ माइनस 228.8. दैट मीन्स ये बन जाएगा minus 470.7 प्लस 228.8 kilojoules, and answer will be minus 241.9 kilojoules. So it will be C option 59th का. तो ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, उसके बाद जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से इक्वेशंस लिखिए, फिर जो गिवन डाटा है वो वाली इक्वेशंस को आपने कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है वो आपने खुद एनालाइज करना है इसमें. तो इसमें देखिए फर्स्ट में से सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 विल गिव यू द रिक्वायर्ड इक्वेशन. और जैसा आपने इन इक्वेशंस को किया वैसे ही डेल्टा H वैल्यूज को भी करेंगे और आंसर विल बी minus 241.9 kilojoules. Next question is 60th question, and this question is that AB, A2 and B2 are diatomic molecules
if the bond enthalpies of A2, AB and B2 are in the ratio 1:1 is to 0.5 and the enthalpy of formation of AB from A2 and B2 is minus 100 kilojoules per mole, what is the bond enthalpy of A2? So 60th question. AB, A2, AB का B2 का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के उनकी बॉन्ड एंथैल्पीज का रेशियो गिवन है इसमें, और साथ में बोला हुआ है इसने कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो AB की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है फ्रॉम A2 एंड B2 उसकी वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्या कीजिए कि AB कैसे बनता है, एक मोल AB कैसे बनेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन AB की गिवन है तो AB का एक मोल बनाइए, कैसे बनेगा? So it will be formed from A2 plus B2. But if we balance this equation, एक मोल बनाना है, mind it, it has to be 1 mole of AB and this will be formed from half A2 plus half B2 और इसके लिए जो delta H है that is given and delta H for this is equal to minus 100 kilojoules per mole और इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन के लिए हाउ कैन यू राइट द डेल्टा H with respect to bond enthalpies or bond energies? Delta H for this reaction will be bond energies of the reactants minus bond energies of the products. Bond energy या bond enthalpy एक ही बात है, bond enthalpies of the reactants minus bond enthalpy of the product. So it will be half bond energy of AA plus half bond energy of BB minus these are the reactants, अब प्रोडक्ट्स की वैल्यूज को माइनस करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है आपने बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB. Now this delta H is known to you, this is minus 100. अब इनका रेशियो देखिए, आपको गिवन है रेशियो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB के बीच में रेशियो गिवन है A2, AB एंड B2. सो इसका माइंड में रखिएगा कि रेशियो किसके हिसाब से गिवन है, A2 पहले, उसके बाद AB, उसके बाद B2 और 1:1:0.5 गिवन है ये. सो दैट मीन्स A2 का अगर आप A वैल्यू ले लें, AB की विल ऑल्सो बी A और B2 की इट विल बी हाफ A. सो हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA दैट विल बी हाफ A प्लस half bond energy of BB that will be 0.5 A or half into 0.5 A because ratio is 1:1:half. So it will be 0.5 A. Next it will be minus bond energy of AB. This will be equal to A only. So एक इक्वेशन बनती है ये कि minus 100 is equal to half A plus half 0.5 A minus A and from this equation you can calculate the value of A and if you calculate the value of A from this equation that will be equal to 400. So it will be 400 और पूछा क्या इसने what is the bond enthalpy of A2. तो A2 का मीनिंग क्या हो गया, A2 का बॉन्ड एंथैल्पी पूछिए, बॉन्ड एनर्जी पूछिए, दैट मीन्स जो A की वैल्यू आएगी दैट विल बी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2. सो आंसर विल बी 400 kilojoules per mole. So in this question I have just used this equation. This equation is for the enthalpy of formation of AB from A2 and B2 and for this equation delta H will be half bond energy of AA plus half bond energy of BB minus bond energy of AB. Now he has given the ratio of bond energies of different reactants and the products. Now ratio है A2, AB and B2 के बीच में, that is 1:1:0.5. A2 की जो bond energy है let it be A, तो A2 की bond energy A ले ली, AB की क्या होगी A, BB की क्या होगी हाफ A या 0.5 A.
So from this equation I have calculated the value of A, and A is the bond energy of AA. So answer will be 400 kilojoules per mole. Next question is 61st question. Equal volume of 1 molar HCl and 1 molar H2SO4 are neutralized by dilute NaOH solution. So base दोनों में common है, NaOH is a strong base, HCl के साथ और H2SO4 के साथ कर रहे हैं which are strong acids, और X and Y kilocalories of heat are liberated respectively. Which of the following is true? तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको मैं बता चुका हूं. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या थी? जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का जब न्यूट्रलाइज होता है तो उसमें 57.1 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड. यहां पे देखिए 61st क्वेश्चन में एक HCl है और दूसरा 1 मोलर H2SO4 है. बोथ आर 1 मोलर और दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. 1 molar HCl will give you how many moles of H positive? This will give you 1 mole of H positive. 1 molar H2SO4 will give you how many moles of H positive? It will give me 2 moles of H positive. तो अब दोनों को अगर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं OH नेगेटिव से, दैट इज NaOH से, तो हीट किस में इवॉल्व ज्यादा होनी है? H2SO4 में हीट इवॉल्व विल बी डबल एज कंपेयर टू द हीट इवॉल्व इन केस ऑफ HCl, बिकॉज इसमें 2 मोल्स H पॉजिटिव के न्यूट्रलाइज होंगे विद OH नेगेटिव आयंस. इसमें 1 मोल H पॉजिटिव का न्यूट्रलाइज होगा विद OH नेगेटिव आयंस. सो हीट इवॉल्व इन केस ऑफ H2SO4 जो होगी दैट विल बी डबल. इसमें कितनी कही है? देखो, इसमें इवॉल्व हो रही है Y कहता, इसमें इवॉल्व हो रही है X. अब मैं कह रहा हूं कि Y विल बी डबल ऑफ X, दैट मींस रिलेशन इज 2X विल बी इक्वल टू Y, और I can say X is equal to Y by 2. So which is the correct option? X is equal to 0.5Y. So it will be X is equal to 0.5Y or X is equal to Y by 2. So it is B option. 62nd question, next question is, a solution of 500 milliliter of 2 molar KOH is added to 500 milliliter of 2 molar HCl and the mixture is well shaken. The rise in temperature T1 is noted. The experiment is then repeated using 250 milliliter of each solution and rise in the temperature T2 is again noted. Assume all the heat is taken up by the solution. तो temperature में जो rises हैं दोनों cases में they will be equal. ये बात ठीक है कि first case में heat evolved will be double. Heat evolved in first case will be double. लेकिन उसमें volume भी तो double है. First case में volume is also double. 500 plus 500 that makes 1000 milliliter. और second case में 250 milliliter plus 250 milliliter makes 500 milliliter. तो दिस इज करेक्ट. अगर आपसे पूछा जाता कि हीट इवॉल्व किस में ज्यादा है, तो हीट इवॉल्व फर्स्ट वाले में डबल है, सेकंड वाले में इट विल बी हाफ ऑफ द फर्स्ट केस. लेकिन फर्स्ट वाले में क्योंकि वॉल्यूम इज आल्सो डबल एज कंपेयर टू द सेकंड केस, तो देयरफॉर टेम्परेचर में जो राइज आएगा दैट विल बी सेम इन बोथ द केसेस. सो इट विल बी T1 इज इक्वल टू T2. ए ऑप्शन 62nd का. Next is 63rd question. Given NH3 gas plus thrice Cl2 gas giving you NCl3 gas plus thrice HCl gas delta H1 इसके साथ enthalpy change associated है. Second is N2 gas plus thrice H2 gas twice NH3 gas बन रहा है और minus delta H2 is the enthalpy change associated with this. This is minus. Third case is H2 plus Cl2 giving you twice HCl gas और इसके साथ enthalpy change associated is delta H3. इन इक्वेशंस को आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मार्क कर दीजिए और उसके बाद देखिए इसने पूछा है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 इन टर्म्स ऑफ delta H1, delta H2 and delta S3 is. First of all you have to write the equation for the enthalpy of formation of NCl3. So NCl3 कैसे बनेगा?
1 मोल बनवाना है आपने NCl3 गैस का, कहां से बनेगा? इट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम N2 and Cl2, but it has to be balanced also. It will be half N2, and what about Cl2? किससे multiply करेंगे? So it will be multiplied by 3 by 2 Cl2, and this is the equation for the formation of NCl3. और इसके साथ जो enthalpy change associated होगा, that will be the heat of formation of NCl3. So you have to calculate delta H associated with this equation. जब 1 मोल NCl3 का बन रहा है from its constituent stable elements N2 and Cl2 के से जब NCl3 का 1 मोल बन रहा है, तो enthalpy change associated with this will be enthalpy of the formation. अब आपको Hess's law of जब heat summation, Hess's law of heat summation जब मैंने करवाया था, तो मैंने ये बताया था कि अगर आपने यहाँ तक पहुँचना है तो एक तरह से ये आंसर है आपके लिए, this is the answer. और इस आंसर तक पहुँचने के लिए जिस से ये मल्टीप्लाइड है, देखिए N2 इज मल्टीप्लाइड विद हाफ, तो जहां पे N2 वाली इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, उस इक्वेशन को आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट कम टू Cl2. Cl2 किससे मल्टीप्लाइड है यहाँ पे? इट इज मल्टीप्लाइड विद 3/2. सो आपको थर्ड इक्वेशन जिसमें Cl2 है उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. NCl3 किस इक्वेशन में है? फर्स्ट इक्वेशन में. यहाँ पे 1 NCl3, वहां पे भी 1 NCl3, तो उस इक्वेशन को आपने कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई किसी से नहीं करेंगे, लेकिन ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा? N2 और Cl2 चाहिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में. दैट मीन्स आप क्या करेंगे? ऑपरेशन विल बी हाफ इंटू इक्वेशन 2 एंड minus 3/2 equation 3 plus equation 1. This will be the operation which you have to do. सेकेंड इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर देखना है आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किस हिसाब से करना है इन तीनों इक्वेशंस को, सो दैट यू रीच अप टू दिस इक्वेशन हाफ N2 plus 3/2 Cl2 giving you NCl3. So it will be half into equation 2 minus 3/2 into equation 3 plus equation 1. So equation 3 को आपने subtract क्यों करवाया? Equation 3 को why did you subtract it from the equation 2? Because यहाँ पे देखिए अगर half करें आप सेकेंड इक्वेशन को, half N2 3/2 H2 आ जाएगा, और it will be NH3 only. So if we do this operation, it has to be subtracted, equation 3 has to be subtracted so that we can reach up to this equation, और first equation को आपको add up करवाना पड़ेगा so that you can reach up to this equation. So जैसा जैसा आपने इन equations को करवाया वैसा वैसा इनकी delta H values को भी आप करवाएंगे. half into equation 2, that means minus H2 divided by 2. And then it will be minus 3/2 into equation 3. So it will be minus 3/2 into H3, and then it is plus equation 1, that means plus delta H1, and this will be the answer. This will be the delta H for this equation, that will be delta H for the formation of NCl3. So it is the heat of formation delta H1 minus delta H2/2 minus 3/2 delta H2, and this will be C option. Delta H4 is equal to delta H1 minus delta H2/2 minus 3/2 delta H2. So next question is 64th question. Under the same conditions, how many milliliters of 1 molar KOH and 0.5 molar H2SO4 solutions respectively, when mixed for a total volume of 100 milliliter, produce the highest rise in the temperature? तो highest rise in the temperature कब आएगा? जब न्यूट्रलाइजेशन जिन मोल्स की हो रही है वो मैक्सिमम हो,
जिन मोल्स की न्यूट्रलाइजेशन हो दे आर मैक्सिमम, और या फिर ऐसा कह सकते हैं जिन मिली मोल्स की न्यूट्रलाइजेशन हो दे शुड ऑल्सो बी मैक्सिमम। सो देखिए इस क्वेश्चन में 64th में एक तो दिया हुआ है 1 मोलर KOH और दूसरा गिवन है 0.5 मोलर H2SO4। तो इसमें से कितने मोल्स आएंगे OH नेगेटिव के? 1 मोल। और इसमें से कितने आएंगे? 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, क्योंकि 0.5 मोलर H2SO4 है और H2SO4 डिसोसिएट होता है टू फॉर्म 2 moles of H positive. So 0.5 molar will give a 1 molar solution, 1 mole of H positive. So अब बात हो रही है कि कितना मिलीलीटर दोनों का लिया जाए so that maximum heat is generated, maximum heat is generated. तो फर्स्ट ऑप्शन देखें कि 67:33, तो 67:33 इतने मिलीलीटर्स इसके लिए जाएं तो इससे जो मिलीमोल्स बनेंगे, अगर मिलीमोल्स निकाल लें तो 67 मिलीमोल्स आएंगे, इसमें वी विल गेट 33 मिलीमोल्स। तो कितने की न्यूट्रलाइजेशन होनी है? 33, ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसमें से 33 न्यूट्रलाइज होगा, तो दैट मींस हीट जनरेटेड विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू 33 मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव। सेकेंड केस देखिए 33:67, तो इसमें भी जो कम है उसके हिसाब से हीट जनरेट होनी है, 33 के कॉरस्पॉन्डिंग हीट जनरेट होनी है। इसमें फर्स्ट में वो ऑल्सो 33 के कॉरस्पॉन्डिंग हीट जनरेट हो रही थी। सी ऑप्शन में आइए 40:60, इसमें किसके कॉरस्पॉन्डिंग हीट जनरेट होनी है? 40 के कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन, दैट इज D 50:50, उसमें किसके कॉरस्पॉन्डिंग हीट जनरेट होनी है? दोनों इक्वल आ रहे हैं 50 के करस्पॉन्डिंग, तो मैक्सिमम हीट जनरेट किस में हो रही है? डी ऑप्शन में 50:50 मिलीलीटर्स अगर हो। सो आंसर विल बी 64th का डी 50:50। 65th क्वेश्चन देखिए, एंथैल्पी ऑफ CH4 प्लस हाफ O2 इज गिविंग यू CH3OH और इसकी एंथैल्पी जो है दैट इज नेगेटिव। If enthalpy of combustion of CH4 and CH3OH are X and Y respectively, then which relation is correct? एक तो दे रखा है, एक रिएक्शन गिवन है CH4 प्लस हाफ O2 जिससे बन रहा है CH3OH, उसकी एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज नेगेटिव। और नेक्स्ट चीज जो दी हुई है वो गिवन है इसने कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन CH4 की गिवन है, CH4 प्लस कैसे कंबशन होनी है इसकी? O2 गिविंग यू CO2 प्लस H2O। अब बैलेंस करें इसको, अगर इट विल बी ट्वाइस O2 गिविंग यू ट्वाइस H2O प्लस CO2 एंड डेल्टा H फॉर दिस इज गिवन दैट इज इक्वल टू, एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है इट विल बी -X, हीट विल बी इवॉल्व्ड, हीट विल बी जनरेटेड, so it will be -X। सेकेंड जो है CH3OH की जो हीट ऑफ कंबशन है दैट इज ऑल्सो गिवन, एंड CH3OH की कंबशन जो होगी दैट विल बी O2 एंड इट विल जनरेट CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग करें अगर इसकी तो CH3OH प्लस 3/2 O2 गिविंग यू CO2 प्लस ट्वाइस H2O एंड डेल्टा H फॉर दिस इज ऑल्सो गिवन and this is equal to -Y. Let it be first equation, let it be second equation. अब एक चीज और गिवन है कि CH4 प्लस हाफ O2, CH4 प्लस हाफ O2 गिविंग यू CH3OH, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज नेगेटिव, डेल्टा H इज नेगेटिव, डेल्टा H इज नेगेटिव। तो आपका एम सबसे पहला ये होना चाहिए अब कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, और इस इक्वेशन तक पहुंचिए कि इस इक्वेशन की डेल्टा H वैल्यू आएगी क्या। क्या करें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सो दैट आप इस इक्वेशन तक पहुंच जाए। सो इट विल बी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल रीच अप टू दिस इक्वेशन। दैट मीन्स क्या क्या किया आपने, जैसे इक्वेशंस को किया वैसे डेल्टा एच वैल्यूज को कीजिए। डेल्टा एच इसके लिए क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस और माइनस वाई, दैट इज माइनस एक्स प्लस वाई, and minus x plus y, this is negative, that is given. That means minus x plus y is less than 0. That means y is less than x or x is greater than y. So answer will be A option, x is greater than y. Next question, 66th question. If at 298 Kelvin the bond energies of CH, CC, C double bond C and HH bonds are respectively 414, 347, 615 and 435 kilojoules per mole, the value of enthalpy change for the reaction ethene plus hydrogen giving you ethane will be. So in this question देखिए, you have to use the formula delta H is equal to bond energies of the reactants minus bond energies of the products. इस reaction के लिए you have to calculate delta H. So what will be delta H for this? बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्या क्या रिएक्टेंट्स हैं, एक तो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी प्लस सी एच, कितने हैं देखिए यहां पे 4 सी एच है तो 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच प्लस हाइड्रोजन है यहां पे प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स, कितने सी एच हैं 6 सी एच, so it will be minus, these are reactants minus products, so minus products will be minus of 6 into bond energy of CH bond plus bond energy of CH bond. अब देखिए वैल्यूज डालिए, C डबल बॉन्ड C की वैल्यू कितनी गिवन है, C डबल बॉन्ड C की वैल्यू थर्ड वाली वैल्यू है 615 प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, CH वाली है फर्स्ट वैल्यू 414, 4 इंटू 414 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H, that is also given fourth value, that is 435 minus 6 into bond energy of CH, 6 into bond energy of CH will be 414 plus bond energy of, again it will be 6 into CH plus bond energy of C single bond C, it has to be C single bond C. So bond energy of C single bond C is given and bond energy of C single bond C is second value, that is 347. So by calculating this, we will come to the value of delta H, and value of delta H in this case is minus 125 kilojoules. This will be the value for delta H of this equation. So this is D option, minus 125 kilojoules. Next is 67th question. 67th question is given H2O liquid to H2O gas, उसके लिए delta H given है plus 43.7 kilojoules, and H2O solid to H2O liquid, उसके लिए delta H given है plus 6.05 kilojoules. इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड नंबर कर दीजिए आप, और the value of delta H sublimation of ice is, the value of delta H sublimation पूछ रहा है ये. So what is sublimation? सॉलिड का गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाना इज सब्लिमेशन. तो 67th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ आइस, H2O सॉलिड टू H2O गैस, इसके लिए डेल्टा एच यू हैव टू कैलकुलेट.
और दोनों ऊपर वाली इक्वेशन को कैसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें सो दैट यू कैन रीच अप टू दिस इक्वेशन। क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशंस को देखिए, अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करवा दें, इफ यू ऐड देम अप यू विल रीच अप टू H2O सॉलिड टू H2O गैस। एडिशन कर देंगे तो H2O लिक्विड H2O लिक्विड दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाना है, और यू विल रीच अप टू H2O सॉलिड टू H2O गैस। दैट मींस डेल्टा H विल बी 43.7 प्लस 6.05, that will be 49.75 kilojoules per mole। ए ऑप्शन आएगा इसका 67th का ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज 68th क्वेश्चन। 68th क्वेश्चन जो है इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स various changes for 1 mole of ideal gases. Answer questions 68th to 72 on the basis of diagram। तो 68 से 78 जो है 72 जो है उनका आपने जो नीचे आपको इसमें असाइनमेंट्स में डायग्राम गिवन है, ग्राफ गिवन है, उसके बेस पे आपने उनको आंसर करना है। तो 68 क्वेश्चन देखिए, द प्रेशर एट ए एंड बी इन एटमोस्फेयर आर रिस्पेक्टिवली। ए और बी पे आपने प्रेशर्स निकालने हैं, और प्रेशर निकालने के लिए यू विल यूज दिस आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। सो प्रेशर विल बी इक्वल टू nRT अपॉन V। अब एटमोस्फेयर्स में प्रेशर निकालने हैं तो आपने माइंड में रखना है कि R की वैल्यू विल बी इन एटमोस्फेयर, लीटर एटमोस्फेयर वाली जो वैल्यू होती है वही डालनी है आपने। एंड लीटर एटमोस्फेयर में इसकी वैल्यू क्या होती है 0.082। R की वैल्यू विल बी 0.082। N कितना दिया हुआ है 1 मोल, तो 1 इंटू 0.082। टेम्परेचर क्या है ए पे, ए पे टेम्परेचर देखिए, ग्राफ में नीचे को ले आए, अगर स्ट्रेट लाइन बनाए आप नीचे को, टेम्परेचर क्या आ रहा है ए के कॉरस्पॉन्डिंग 200 केल्विन अपॉन वॉल्यूम। ए के आगे को लाइन ड्रॉ कीजिए, बनी हुई है लाइन वहां पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए वहां पे वॉल्यूम कितनी है 20 लीटर्स। So volume will be 20, and if we calculate this, this will be pressure will be 0.821. This will be the pressure at the point A. So यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस में एक ही जगह पे ऐसी ऑप्शन है जहां पे A पे 0.821 है, तो we need not calculate the pressure at B. So answer will be A 0.821 and 1.642। 69th क्वेश्चन देखिए, द प्रेशर एट सी। सी पे भी प्रेशर निकालना है, सेम यही इक्वेशन यूज करनी है, सेम PV इज इक्वल टू nRT इन केस ऑफ 69th क्वेश्चन ऑल्सो। एंड प्रेशर विल बी P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, एंड N इज 1, R इज 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज, टेम्परेचर देखिए सी पे 200 केल्विन, वॉल्यूम देखिए सी पे, वॉल्यूम इज 10 लीटर्स, तो डिवाइडेड बाय 10, इफ वी कैलकुलेट दिस, दिस इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू 1.642 एटमॉस्फेयर विल बी द आंसर इन दिस केस 1.642। सो 69th का बी ऑप्शन। 70th क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस विच अकर्स इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी। बी से लेके सी तक देखिए प्रेशर्स क्या आ रहे थे, 68th में बी पे प्रेशर क्या है, देखिए 68th का आंसर था ए ऑप्शन, बी पे प्रेशर क्या है 1.642। सी पे निकाला हमने 69th क्वेश्चन में, सी पे प्रेशर क्या आया 1.642। और ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम रहे, जब ऐसा प्रोसेस हो व्हेन द प्रेशर रिमेन्स द सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज isobaric process. So 70th का आंसर will be C, isobaric। 71st question, the work done in going from C to A is, you have to calculate the work done in going from C to A। C पे वॉल्यूम क्या थी 10 लीटर्स और A पे वॉल्यूम क्या है 20 लीटर्स। So it is expansion work will be negative। First of all it has to be negative। और वर्क डन कैसे निकलता है 71st देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल
यहां पे कौन सा P एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा लोगे आप? एक्सटर्नल प्रेशर विल बी द फाइनल प्रेशर, जहां पे आप पहुंच रहे हो वहां पे क्या प्रेशर है, जिस फाइनल स्टेट पे आप पहुंच रहे हो वहां पे क्या प्रेशर है, दैट विल बी P एक्सटर्नल. सो C to A पे क्या प्रेशर है? 68 पे we have calculated the pressure at A, that is 0.8 to 1. So external pressure will be 0.8 to 1. What is the final volume? Final volume is, A पे क्या वॉल्यूम है 20 लीटर्स और C पे क्या वॉल्यूम थी 10 लीटर्स. तो 20 minus 10 that is 10. So it will be minus 0.8 to 1 into 10, that is equal to minus 8.21 liter atmosphere. That will be the answer. Minus 8.21 liters atmosphere. Next question, 72nd question. The process A to B refers to. A से B पे जब जा रहे हैं तो वॉल्यूम इज सेम. देखिए A से B पे जब जा रहे हैं वॉल्यूम इज सेम, दैट इज 20 लीटर्स. तो जब वॉल्यूम सेम रहती है तो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस. सो आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी द आंसर, दैट इज 72nd का C इज द करेक्ट ऑप्शन, आइसोकोरिक प्रोसेस. 73rd क्वेश्चन आइए. अब यहां पे इस ग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस खत्म हो गए 72nd तक. नाउ वी हैव another question, 73rd question, and this question is, for the reaction C3H6 gas plus 5O2 gas giving you thrice CO2 gas minus 4H2O liquid at constant temperature, delta H minus delta U is, so it will be 73rd question, it will be delta H minus delta U क्या होता है, या delta H minus delta E क्या होता है, that is equal to delta NGRT. Delta NGRT. So in this case it will be, what will be delta NG in this case? Delta NG products के gaseous moles देखिए कौन से gaseous moles हैं, thrice CO2, thrice CO2 gas. और रिएक्टेंट साइड में देखिए कितने गैशियस हैं, मोल्स हैं, 5O2 गैस एंड 1 C3H6. तो 5 + 1 6 आ गए रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में वी हैव 3 CO2 गैस. सो 3 - 6 दैट इज -3. -3 RT will be answer in this case, -3 RT. Next question, 74th question. The latent heat of fusion in joules per gram of 5 substances. A is molecular mass is given 18, B का molecular mass is 20, C का molecular mass is 30, D का it is 60, E का it is 30 are respectively. Which of the following pair has same value of delta H fusion? डेल्टा H फ्यूजन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब एक मोल सॉलिड सब्सटेंस का फ्यूज हो जाता है, दैट मींस सॉलिड सब्सटेंस का एक मोल जब लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, तो एंथैल्पी एसोसिएटेड विद दैट प्रोसेस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. दैट मींस डेल्टा H फ्यूजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू, इज रिलेटेड टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस. यहां पे जो वैल्यूज गिवन है दे आर पर ग्राम, आपको निकालनी है पर मोल, और ऐसे केसेस देखने हैं जिसमें पर मोल वैल्यूज सेम आ रही हैं. तो ए में देखिए निकालना कैसे है ये क्वेश्चन, पर ग्राम जो वैल्यूज गिवन है उनको पर मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे. जो भी वैल्यू गिवन है पर ग्राम में, जैसे फर्स्ट देखिए ए की कितनी वैल्यू है 80 गिवन है, दिस इज पर ग्राम, इसको पर मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे 80 इंटू जितना मॉलिक्यूलर मास है ए का 18. बी का पर मोल कैसे कन्वर्ट करोगे 45 इज द वैल्यू गिवन पर ग्राम इंटू 20. सी का वैल्यू इज गिवन दैट इज 90 इंटू 30. डी का इट इज 45 इंटू द मॉलिक्यूलर मास डी का 60. ई 45 इंटू और E का मॉलिक्यूलर मास इज 30. अब इनमें देखना वैल्यूज कौन सी सेम आ रही हैं, C एंड D की वैल्यूज दे विल बी सेम, C एंड D की वैल्यूज विल बी सेम. 2700 आएंगी दोनों की वैल्यूज, बाकी सारी वैल्यूज ये दे विल बी डिफरेंट वैल्यूज. सो C एंड D का जो डेल्टा H फ्यूजन है दैट इज सेम, सो इट विल बी
D option C and D. Next question is 75th question. Given that delta G naught formation for Al2O3 solid and Na2O solid are minus 1582 kilojoules and minus 377 kilojoules per mole respectively. Mark the correct statement. तो 75th में डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन गिवन है और यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, कौन सा रिएक्शन फीजिबल होगा, कौन सा रिएक्शन अपने आप हो सकता है. तो इट विल बी Al कैन रिड्यूस, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. Al कैन रिड्यूस Na2O to Na. कैसे आया देखिए ये, Al कैन रिड्यूस Na2O, तो अदर वे अराउंड लिख लें, ऐसे लिख लें कि क्या रिएक्शन कैसे बनेंगे ये. तो ये बनेंगे Al2O3 जिसके बारे में एंथैल्पी ऑफ फॉर्म, ये जो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है Al2O3 सॉलिड, इसके साथ क्या रिएक्ट करें कि एल्यूमिनियम प्लस सोडियम ऑक्साइड ये बने. इससे आपको सोडियम का रिएक्शन करवाना पड़ेगा. सो इट विल बी Al2O3 प्लस सोडियम गिविंग यू एल्यूमिनियम प्लस Na2O. इसको बैलेंसिंग करवाएंगे इसको, इस इक्वेशन की आप. सो इट विल बी 6Na थ्राइस Na2O एंड ट्वाइस एल्यूमिनियम. ये रिएक्शन बन गया और इस रिएक्शन का आप डेल्टा जी नॉट निकालोगे एंड डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन विल बी gives free energy of formation of the products minus gives free energy of formation of the reactants. Aluminium और sodium के लिए delta G naught formation will be 0 because by convention delta G naught formations of pure elementary substances of pure elements are taken as 0. So that means thrice Na2O की value 3 into Na2O is Na2O की वैल्यू गिवन है दैट इज माइनस 377. 3 into minus 377, these are the products, minus reactants minus the value for Al2O3. So minus value for Al2O3 is minus 1582 and this will be positive value and it is actually equal to 451 kilojoules. दैट मीन्स अगर इस रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस. और बैकवर्ड के लिए डेल्टा जी नॉट विल बी माइनस 451 किलोजूल्स. दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन जो है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस, बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फीजिबल, बैकवर्ड रिएक्शन अपने आप हो जाएगा. दैट मीन्स एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस Na2O टू Na. एल्यूमिनियम रिडक्शन करवा सकता है Na2O की और Na बनवा सकता है उसमें से. तो बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फीजिबल. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इक्वेशन, रिएक्शन लिखना पड़ेगा. चाहे आप इस तरह लिख देते, क्योंकि ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन देखिए मैंने कि Na इज एबल टू रिड्यूस Al2O3, Na इज एबल टू रिड्यूस Al2O3 टू एल्यूमिनियम. तो इसके हिसाब से मैंने पहले इक्वेशन लिख दी. मेरे को पहले पता नहीं था कि ए ऑप्शन करेक्ट होनी है या सी होनी है या बी होनी है, डी ऑप्शन करेक्ट होनी है. तो रिएक्शन किस हिसाब से लिखा मैंने, जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन थी उस हिसाब से रिएक्शन लिख दिया. उसने कहा Na इज एबल टू रिड्यूस Al2O3, तो Na का Al2O3 के साथ बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन करवाया. ये पता होना चाहिए क्या क्या बनेगा. और फिर इस रिएक्शन के लिए मैंने डेल्टा जी नॉट निकाला और डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन के लिए केम आउट टू बी प्लस 451 किलोजूल्स. दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इट विल बी माइनस 451 kilojoules. दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, बैकवर्ड रिएक्शन इज फीजिबल. और फीजिबिलिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मीनिंग ये हुआ कि एल्यूमिनियम इज एबल टू रिड्यूस Na2O टू Na. सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज 76th question. If an endothermic reaction is non-spontaneous at the freezing point of water and becomes feasible at its boiling point, that means temperature rise करवाने पे feasible हो रहा है. जब low temperature था तो it was not feasible, it was not spontaneous. तो 76 देखिए, delta G is equal to delta H minus T delta S. This is the इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जिससे आप फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी पता लगा सकते हो. एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दैट मींस डेल्टा H इज पॉजिटिव, दिस इज नॉट फेवरेबल.
ये डेल्टा जी को नेगेटिव नहीं बना रहा, इट इज टेकिंग द प्रोसेस टुवर्ड्स नॉन स्पॉन्टेनिटी, और स्पॉन्टेनिटी की तरफ कौन सा लेके जाएगा, ये वाला फैक्टर। और इसमें पूछा इसने कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की क्या वैल्यूज होंगी। अब ये तो नॉन स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेके जा रहा है, दिस इज नॉट फेवरेबल। और अगर प्रोसेस चाहे लो टेम्परेचर्स पे दैट वाज नॉट फिजिबल, हायर टेम्परेचर पे तो फिजिबल हुआ वो रिएक्शन, और हायर टेम्परेचर पे वो फिजिबल क्यों हुआ होगा, बिकॉज डेल्टा एस शुड बी फेवरेबल, ये फेवरेबल होने के लिए पॉजिटिव है, और टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। अगर ऐसा हो जाए तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव जब होगा तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, और टी डेल्टा एस विल डोमिनेट ओवर डेल्टा एच। कैसे हो सकता है डोमिनेशन, कैसे हो सकता है, अगर टी इज वेरी लार्ज, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो टी डेल्टा एस विल डोमिनेट ओवर डेल्टा एच, और प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनिटी की तरफ चला जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा एस हैज टू बी पॉजिटिव। हैड इट बीन ऐसा केस होता कि ये भी नेगेटिव होता और ये बाहर नेगेटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव ही होना था, जो मर्जी टेम्परेचर ले लेते, तब ऐसा नहीं होना था कि लोअर टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, हायर पे स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाना था रिएक्शन ने, अगर डेल्टा एस भी यहां पे नेगेटिव होता। तो डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, so it will be B option, delta H and delta S both are positive. Next question is 77th question. A heat engine absorbs heat Q1 at temperature T1 and heat Q2 at temperature T2. Work done by the engine is जूल्स में दिया हुआ है Q1 प्लस Q2, दिस डेटा, दैट में जितनी हीट एब्जॉर्ब की उतनी हीट कन्वर्ट होगी है वर्क में। सो दिस डेटा डज नॉट वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे पूरी कंजर्वेशन है कि जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क। सो 77th का डी ऑप्शन, it does not violate first law of thermodynamics. 78th question, the heat required to raise the temperature of a body by 1 Kelvin is called thermal capacity or thermal enthalpy. It has to be thermal enthalpy. So 79th question, the enthalpy change of a reaction does not depend upon, so it is based on Hess's law of constant heat summation, which says that कि किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए जो टोटल एंथैल्पी चेंज है, द एंथैल्पी चेंज फॉर ए प्रोसेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, चाहे रिएक्शन जो है एक स्टेप में हो, चाहे रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में हो या वाया सी हो, अगर इसके लिए डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज और ए टू सी एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा H1 और सी टू बी इट इज डेल्टा H2, then delta H should be equal to delta H1 plus delta H2, and this is Hess's law of constant heat summation. Therefore 79th का क्या आंसर होना चाहिए, the enthalpy change of a reaction does not depend upon the nature of intermediate steps. 80th question, for an irreversible process taking place at constant temperature and pressure and in which only pressure volume work is being done, the change in Gibbs free energy delta G and change in entropy ds satisfy the criteria. तो इसमें जो नीचे VE TP वगैरह दिए हुए हैं उससे कोई पजल होने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू सी कि अगर irreversible process है दैट इज अ spontaneous process. All the spontaneous processes are thermodynamically irreversible processes. So irreversible process की बात हो रही है, that means it is a spontaneous process. Spontaneous कब होता है process? जब डेल्टा H क्या हो, नेगेटिव। खैर डेल्टा H की तो बात हुई नहीं है, डेल्टा H शुड बी नेगेटिव, वो स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेके जाएगा प्रोसेस को, और डेल्टा G क्या होना चाहिए, दैट विल बी नेगेटिव, दिस इज द मेन क्राइटेरिया, डेल्टा G शुड बी नेगेटिव, और साथ में डेल्टा S क्या होना चाहिए, डेल्टा S शुड बी पॉजिटिव। सेम वहीं से इस इक्वेशन से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से मैं कह रहा हूं
डेल्टा जी तो नेगेटिव होना चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है इट विल मेक डेल्टा जी नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज फेवरेबल। और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है और बाहर क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव विल मेक डेल्टा जी नेगेटिव, दैट मीन्स इट विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी इज नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डेल्टा जी और डेल्टा एस की, तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, दैट इज डेल्टा डी जी लेस देन 0 होना चाहिए, ds should be greater than 0. So answer will be B option, 80th का B. Next is 81st question. 81st question is identify the intensive property. तो intensive properties क्या होती हैं? ऐसी properties which are independent of the amount of substance. The intensive properties are the properties which are independent of the amount of the substance. तो independent कौन सी है इसमें देखिए, enthalpy that is an extensive property, it depends upon the amount of substance. Volume and temperature, volume जो है that depends upon the amount of the substance. कम substance होगा कम volume होगी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा volume होगी. C, enthalpy and volume both are extensive, so it has to be D. Temperature and refractive index both are intensive properties. Temperature भी, चाहे पूरी bucket full of water हो, temperature उसका same होना है, चाहे उसमें से एक मग निकाल लो पानी का, चाहे पूरी bucket के पानी का temperature देखिए, temperature will be constant, temperature will be same for both the cases. So temperature is an intensive property. Refractive index, किसी भी जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाउ इसकी बेंडिंग कैपेसिटी क्या है, लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी क्या है, दैट विल बी कांस्टेंट। चाहे बड़ा शीशा ले लो वही वाला सेम सब्सटेंस का, चाहे छोटा शीशा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी सेम, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. सो टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, सो बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. So D is the correct option 81st का. Next is 82nd question. The correct relationship between free energy change in a reaction and the corresponding equilibrium constant Kc is. So 82nd. So it has to be delta G naught is equal to minus 2.303 RT log of Kc. This is the correct option. So this will be, this can also be written as delta G is equal to, G naught is equal to minus RT natural log of Kc, or it can also be written as minus delta G naught is equal to RT log of Kc. So ये वाली ऑप्शन देखिए कौन सी है, D ऑप्शन है. So this is the correct relation. एक याद रख लीजिए आप, delta G naught is equal to minus 2.303 RT log of Kc. तो वहीं से निकल जाएगा. This was log to the base 10, इसको convert किया मैंने natural log में, log to the base e में. So this is delta G naught is equal to minus RT log of Kc. Now this is minus delta G, minus इसलिए आया, minus delta G naught is equal to RT log of Kc. So it is 82nd का D is the correct option. 83rd question. Internal energy change when system goes from state A to state B is 40 kilojoules per mole. If the system goes from A to B by reversible path and returns to state A by irreversible path, what would be the net change in the internal energy? A से B गया कहता reversible path से and returns to the state A by irreversible path. अब जो internal energy change होती है, that is a state function. It does not depend upon the path taken by the system. जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सिस्टम जा रहा है तो जो मर्जी पाथ फॉलो करे सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी विल बी सेम. अब इसमें कहा ए से बी रिवर्सिबल है, बी से ए इरिवर्सिबल है, तो पाथ जो मर्जी फॉलो किया लेकिन एक साइक्लिक प्रोसेस बन गया और वहीं पे रिटर्न कर गया सिस्टम, तो डेल्टा ई विल बी जीरो. इट विल नॉट बी equal to 40, greater than 40, less than 40 kilojoules. It has to be 0 because the system has returned to the original state. A से B से फिर B to A आ गया, पाथ जैसे मर्जी फॉलो किया है, चाहे रिवर्सिबल है चाहे इरिवर्सिबल है, it has returned to its original state.
So delta E or delta U, internal energy change, should be equal to 0 in this case. So 83rd का D option.